So yes, Mr. Deepak, first of all, welcome to Margdarshan. Hello, sir. First of all, introduce yourself. Hello, sir. My name is Deepak Singh, and I am from Gazipur, Uttar Pradesh. I have completed my BTech in Chemical Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. Uh, Currently, I am pursuing my masters from Indian Institute of Technology, Hyderabad, and my hobbies are playing and watching cricket and reading books. Anything else you want to add on? Sir, currently I am working on the project that is effect on forces due to change in chain length of a polymer grafted nanoparticles. So can you tell us about your understanding of IOCL's core product? Yes, sir. Yes. Basically, petroleum products and lubricating oil, that is servo, and some LPGs like the brand name is Indane. Okay. Do you know about IOCL's recent projects or initiative in energy sector? Are you aware of that? No, yes, sir. They call उनका collaboration है इजराइल के साथ to make aluminium air battery. Aluminium batteries. Yes, sir. Okay. So do you know where, as a chemical engineer, where do you get job in IOCL or where you are getting placed in IOCL? हाँ सर, मोस्टली या तो रिफाइनरी में होगा, रिफाइनरीज में, या तो फिर मैनेजरियल पोस्ट के लिए. So what are that skills that make you qualify or better than other candidates to qualify IOCL interview or get job into IOCL? सर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, डिसिप्लिन हूँ, और मैं एज अ टीम भी काम कर सकता हूँ. तो ये सब स्किल्स मुझे लगता है कि जो मतलब मुझे IOCL में सेलेक्ट होने में मेरी हेल्प करेंगे. Yes, Subodh sir, please. चलो बढ़िया है. Good introduction. So given a chance, let's imagine you are selected into IOCL. So will you leave your MTech seat? Yes, sir. And why do you think that will be a good thing to do? सर, जो भी एक्स्ट्रा जब जैसे कि मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो मैंने 2 साल का गैप लिया था, तो मैंने मोस्टली जो भी बीटेक के लेवल पे केमिकल इंजीनियरिंग में चीजें थी वो मैंने सीख ली थी. तो थोड़ा अपना नॉलेज को होराइजन करने के लिए मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था. बट अब यहाँ पे मोस्टली मेरा जो भी कोर्स वर्क है वो खत्म हो गया है, और अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस पे भी मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, उस पे बहुत ज्यादा इनपुट हो गया है. तो मुझे लगता है कि अगर मैं IOCL ज्वाइन करूंगा तो मैं ये लीव कर सकता हूँ, या तो फिर अगर कंपनी अलाउ करेगी तो मैं पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ इस एमटेक को बस. Okay, fine. That's great actually. So what are your favorite subjects? I mean, Sir, tell us something about you. Mass transfer, heat transfer, and fluid mechanics. Cool. So let's imagine. Sir, first of all, we will be taking HR interviews, okay? Okay, cool. So let's focus on your HR side. So you said your strength is hard work, right? Yes, sir. So can you give us some example where you had to showcase your strength? Yes, sir. लास्ट ईयर क्या हुआ, जब मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था तो जो भी इधर कोर्सेज चल रहे थे, डेली क्लासेस चल रही थी, और उसके साथ गेट का प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट था. बट मैंने उसको कैसे भी करके किया, मतलब बहुत मेहनत एफर्ट डाला, और मैंने इसलिए कि सुबह से शाम तक क्लास करता था, बट रात को फिर गेट के लिए पढ़ाई करता था. ठीक.
who is current, director or CEO of IOCL? Yes, sir. Like Srikant Madhav Vaidya, Correct. And who is petroleum minister? Hardeep Singh Puri. Good. So IOCL, IOCL can be categorized into upstream and downstream, wherein one of the category essentially deals with the distribution of oil. So do you know if IOCL also works in finding the oil and then taking it back? I mean from the earth, you can say. Sorry, sir, I did not get. Can you So please does repeat? IOCL? Do you know if IOCL also works in the upstream? Yes, sir. It does. Or IOCL just takes, buys oil for from some another company, let's say ONGC or Reliance, and then purify it, distill it, and then give it to people. Sir, I'm not sure about that, but I think वो जो भी लाइक शाम की रिफाइनरी वहां पे वो अपस्ट्रीम पे भी काम करते. Okay. So I suppose you must be having a very good gate rank. So why do you want to join IOCL? I mean, at later stage, some another company will come in and they will hire you. So will you leave IOCL at that point of time? नहीं सर, मैं IOCL नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पे लाइक बहुत अच्छा वर्क कल्चर है और जो IOCL है इसलिए भी अच्छी है क्योंकि वो अभी लाइक फॉर्च्यून 500 में उसकी 94th रैंक थी, जो कि एक ओनली PSU था इंडिया की तरफ से. तो सर वो, और यहाँ पे जो भी माइंडसेट है, जो भी लोगों का काम करने का तरीका है, जो भी लोग काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर. Okay, good. Yes, sir. Okay, so we will be concluding here itself. Deepak, you need very much improvement in your communication skills. First of all. Okay. एक और थोड़ा IOCL के बारे में जान लो. तुम्हारा वो साइड थोड़ा मुझे वीक लगा, लाइक प्रोडक्ट्स क्या है, प्लस तुमने एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया ग्रीन एनर्जी के साइड, जो जैसे IOCL जो गो थ्रू कर रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया छोड़ दिया. थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में देखो. Along with that, it was appearing कि तुम्हारे आंसर्स थोड़े शॉर्ट है. Even introduction was there short. I mentioned yesterday only how to give introduction. I told still you are doing failure in that. You are not up to the point. Although ये होता है. You started. मैं आपको बताता हूँ आपने क्या गलती करी. I am from. आपने क्या बोला? I am have कुछ तो भी ऐसा बोला. ओके, तो वहां पे जो इंग्लिश का जो स्टेटमेंट था वो भी गलती हो. I am, I didn't mention I am को स्टार्ट किया था, वो I have भी होना चाहिए था. I have ऐसा कुछ आना चाहिए था वो. ओके, सर बोला था I am from Gazipur and I have completed my B.Tech. I am completed, yes, and I have completed होना चाहिए वो. I am बोला आपने. हाँ. ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, दैट इज ओके, बट पॉइंट बीइंग कि थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में मतलब इवन आई फेल्ड द सेम, वी बोथ फेल्ड द सेम, कि थोड़ा एक अपब्रिंगिंग होना चाहिए. क्योंकि सी व्हाटएवर यू नो, व्हाटएवर द नॉलेज यू हैव, इट्स काइंड ऑफ यूजलेस अनलेस यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट. अनलेस द आगे वाले बंदे को तुम कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि वो यू नो व्हाट आई नो दिस, वो थोड़ा एक रिडंडेंट हो जाता है, थोड़ा यूजलेस टाइप से हो जाता है. सो डू वर्क ऑन दैट. अलॉन्ग विद दैट IOCL के बारे में जान लो. एंड ऑल्सो थोड़ा ये अपीयर हुआ कि जो एक स्टैंडर्ड HR क्वेश्चंस थे, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम येट. सो टेक अ पेन एंड पेपर, राइट इट डाउन, राइट डाउन द आंसर्स. थोड़ा उसको रीवेरीफाई करो, किसी से पूछ के ये भी चेक कर लो कि एग्जैक्टली वो करेक्ट आंसर है क्या, और आर दे रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट. दीपक, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको IOCL में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, गेट में आपका 178 रैंक है, OBC कैटेगरी है, बट एक 85% ही आपका मैटर नहीं करेगा. क्राइटेरिया इधर 15% में भी होगा. ओके, कम से कम 6 नंबर आने चाहिए, कम से कम 6 नंबर. और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप OBC कैंडिडेट भी हो फिर भी 10 नंबर तो आपको लाना ही है, तब सिलेक्शन मानो आप. ठीक है,
तो Sure. हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, सो वी आर अज्यूमिंग काइंड ऑफ कि तुम्हारा टेक्निकल अच्छा होगा. अगर तुम टेक्निकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो दिस थिंग्स कैन बी ओवरशैडोड इजीली. ठीक है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट दैट यू कुड हैव. वी कैन, मुझे उसके बारे में सब सिंपली आइडिया नहीं है एज ऑफ नाउ. बट यस, एज फार एज एचआर साइड इज कंसर्न, यू हैव टू इम्प्रूव एंड यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव. तुम्हें ये एक Yes. IITian बन चुके हो, सो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू डू फॉर यू. Sure. हाँ, अगर तुम टेक्निकल में वीक होते देन वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है रिलेटिव टू HR में वीक होना, बिकॉज यू नो HR थिंग्स कैन बी इम्प्रूव वेरी फास्ट. यू स्टिल हैव दैट टाइम.